जय महाभारत पार्टी ने अपने स्तर पर सभी पार्टी को टक्कर देने की योजना बनाई है। पार्टी ने विपक्ष में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। जय महाभारत पार्टी के नेता भगवान श्री अनंता विष्णुदेवा ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी होने वाला गोवा विधानसभा चुनाव लड़ेगी और 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित करेगी। Government schools closed and encourage the private schools. So I let know, and we are providing our agenda 100%. Here private education take over by the government of Goa or ban. I mean, irrespective of caste and creed, we have 100% provide free education. That is our main agenda. It is not a big matter to provide the entire Goa state free education. If you get the free education, then you will serve the in better manner. If you purchase the education, you also become a commercial man. So we eradicate the commercial system, we serve the nation. That's why we are providing 100% education. Right now, so many fathers, their parents suffering, especially this privatization fees. So that's why we avoid that system. We encourage the 100% free education system, and we are going to construct to various number of schools, college establishments in all fields for the education purpose. And also we are going to construct number of multiple super specialties hospitals in all constituencies, and we have to provide 100% free medication and treatment systems. So why do people vote for you? Because hardly one month has been there, and you are saying you are taking a 40%. Do you think people will vote for your party? So to convince the people, we not confuse the people. Our agenda very clear. Our aspirants will be selecting right now on. So we have much time. We have to convince the Goa people. Why? Because of today, near about Goa achieved the 75% literacy. Every people should know what is good, what is bad. If our agenda is good, they can convince and they can give the vote if you want best government. That is our appeal. You have a 40 registered members. You contact on the 40. So you have a people contact 40. Yes, sir. Right now, 15 candidates we have, but we are selecting much more candidates, and so many calling me. Sir, we want to join your Jai Mahabharat party. Kindly give the appointment extra. Sir. The nomination selection, I think 21st January. So we have much time to select the candidates. Still more within 10 days, we will introduce our 40 MLA aspirants, sir. How confident you are? Why you vote for this? Our cadre worked since 6 months back here Goa. So we have entire data. We don't bother about candidates issues, sir. We can convince the Goa people. Why? Because of I am also side by this Maharashtra. I belongs to Maharashtra. I know what is the Goa system. Goa people's what they want. That's why we are convincing the Goa people. गोवा की राजनीति में आप जिस तरह से देखते हैं और माना भी जाता है कि एक दौर होता है बड़े प्रत्याशी छोटे, तो यहाँ पार्टी का कोई बेस नहीं, पार्टी बेस पीपल लीडर कहा जाता है कि यहाँ पीपल लीडरशिप है। ऐसे में आप क्या देखेंगे कि प्रत्याशी एकदम से आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से एकदम से लाएंगे, या खरीद फरोख्त की राजनीति को देखा गया है, आप बहुत चरम पे देखा है, आप कैसे? जय महाभारत पार्टी खरीदना, पैसा देना, ये सिस्टम से हम दूर है सर। हम वोटर्स को जगा रहा है। तो पहले हमारे पास प्रत्याशी बनने के लिए 3 पैरामीटर्स होना जरूरी है। पहले सेवा भाव होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड, एंड पेशेंसी होना चाहिए, एंड जनता को टाइम दे सके काम करने के लिए। और इस तरीके से हम कैंडिडेट लोगों को चुन रहा है। हमारे पास भी बहुत लोग वहाँ रहे हैं, लेकिन इसमें फिल्टर कर रहा है। सर्विस ओरिएंटेड इज इम्पॉर्टेंट। कहीं ना चेंज शुरू करना पड़ेगा। वो चेंज आने के लिए शुरू हम कर रहा है। हम चाहते हैं पूरा गोवा लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। वोट के लिए पैसा मत लेना है और वोट के लिए पैसा मत देना है, ये कॉन्सेप्ट हम पूरा गोवा को स्प्रेड करना चाहता। वो मेन हमारा मिशन वो है। इसका मतलब इसको देख के बाकी देश में भी सुधार आ सके, ये बात है। इतनी जल्दी में अभी कल भी आप चुनाव का जो डेट है अनाउंस की है, गाइडलाइन भी जारी की है कि डिजिटल माध्यम से 15 तारीख तक डिजिटल माध्यम से चुनाव को किया जाए।
तो क्या आपने डिजिटल से लड़ने के लिए क्या ऐसी तैयारियां की हैं कि आप भी अपने प्रत्याशियों को और अपने चुनाव कैंपेन को डिजिटल तरीके से? सर, जो ये ड्यूरिंग द कोरोना टाइम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल डिजिटल मीडिया बेहतर होगा। जनता को मैसेज पहुंचना है, हम कौन हैं, क्या करने आ रहा है, हमारा प्रत्याशी क्या है, बस इतना जनता को पहुंचने से वो लोगों समझ के वोट देगा। गोवा तो लोगों बहुत बढ़िया है सोच। गोवा में लगभग पूरा टीवी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, तो इसलिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड राइट नो वर्ल्ड बिकेम ये ग्लोबल विलेज। तो 1 घंटा 24 घंटा में हमारा विचार जनता के पास आप लोगों के माध्यम से पहुँचे। हम अच्छा करने का आए तो सोच के जनता समझ कर वोट देगा, नहीं तो हम जनता से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन ये कह सकते कोई राजनीति के पॉलिटिकल के दल के पास हमारा जैसा अच्छा एजेंडा नहीं है, हम सोचम है। मैं सिर्फ मास्टर ऑफ लॉ स्टडी किया, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवोकेट हूँ। व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ गुड आई नो वेरी वेल, बट हम सर्विस ओरिएंटेड पीपल है। जय महाभारत पार्टी नेशनल लेवल पार्टी है। ट्राई टू आवर बेस्ट, माई लेवल, आवर लेवल, वी हैव टू कन्विंस द गोवा पीपल इन हम्बल मैनर सर। अंतिम सवाल मेरा एक आपसे ये है, कितने संवैधानिक आपके जो व्यक्ति हैं जो कोई जीता है इतने लोगों को? जय महाभारत पार्टी जो नेशनल लेवल पार्टी सर, ये 2010 से पॉलिटिकल फील्ड में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से घोषित किया है। 2014 में लगभग 300 लोकसभा प्रत्याशी को टिकट किसी किया। अलग अलग राज्यों में कई जगह पे लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 में है, एक जगह पे 10,000 वोट, एक जगह पे 5,000 वोट, ऐसा कई जगह पे आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट में आप मिल सकते हैं। 2019 में भी लोकसभा लड़ा, बगल में महाराष्ट्र में लोकसभा असेंबली लड़ा हम लोग, हरियाणा में लड़ा, बिहार में लड़ा। तो ये नया पॉलिटिकल पार्टी धीरे 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 हम काम कर रहा है। हमारा मोटो क्या है सर, हम वोट के लिए पैसा देते नहीं, किसी से पैसा वोट का ऐसा मजबूरी ना पड़े, हम जनता को आगे मिस कर रहे हैं सर। यस, मैं इसको एलाबरेटिंग बताना चाहता हूँ। तो अभी गोवा में जो लिकर के माध्यम के आई थिंक सो 2000 करोड़ रुपीस आते होगा। तो लेकिन ये समुद्र मंथन मतलब समुद्रम आरती का प्रोजेक्ट मतलब ओशन वर्शिप, इसमें क्या पूरा गोवा बीच क्लीन करेगा। तो सुबह और शाम पे जो समुद्र का आरत ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनराइज एंड ड्यूरिंग द सेट ऑफ द सन, सो समुद्र आरती करने से क्या होता, तो कई वर्ल्ड वाइड लोगों में यहाँ पहुँचेगा वो आरती देखने के लिए। कोई भी आरती में बैठना चाहता तो उसका मिनिमम फीस रहेगा, तो उसमें रेवेन्यू बढ़ जाएगा और इकोसिस्टम भी बढ़ेगा और पूरा गोवा लोगों को एम्प्लॉयमेंट 100% मिलेगा। इट इज़ ए नॉट रिलीजन, इट इज़ ए स्पिरिचुअल, इट इज़ ए प्रकृति की आराधना कहा जाता है उसको, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन। मतलब समुद्र मैंने ऑब्जर्व किया था सर, बीच बहुत खराब हो चुका है और कल्चर बिगड़ रहा है। उसको सुधरने के लिए अगर दारू बेच के 2000 करोड़ कमाना या हमारा ओशन वर्शिप समुद्र आरती के द्वारा 15,000 रेवेन्यू बढ़ाना, ये बहुत अच्छा बात होगा। अभी दारू बेच के भी यहाँ गोवा लोग सब फॉरेन में अब्रॉड में जा रहे हैं जॉब के लिए। अगर हमारा समुद्र आरती प्रोजेक्ट शुरू हो जाता, इसमें 10,000 से 15,000 करोड़ का ये गोवा सरकार का रेवेन्यू आएगा। यहाँ एक आदमी भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं सर। तो गोवा लगभग 60 किलोमीटर बीचेस को क्लीन करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, उसमें पूरा गोवा लोग अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज? समुद्र का बेस गोवा अच्छा है। पहले मैंने ब्रह्मपुत्र नदी भी पोल्यूशन होते मैंने अनाउंसमेंट किया था 2016 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से। अभी बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ कर रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो आरती कर रहा है। दिल्ली में मैंने यमुना नदी की घोषणा किया। तो जो सत्ता में है वो लोगों अच्छा प्रोजेक्ट है तो इम्प्लीमेंट कोई भी करने दो। मेरे कहने का मतलब हमारे एजेंडा जो है हम ही सरकार बना के करने भी ठीक है, अगर कोई भी सरकार बन के करने तो भी ठीक है, इसमें हमें कोई नहीं। अल्टीमेटली जनता को भला चाहता हम लोगों। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।